السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ لیبیا کے حکمران ڈکٹیٹر معمر قذافی امریکہ کے وجود اور اس کے مستقبل میں اس کے سروائیول کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے، اسی لیے CIA نے انہیں اپنے ہی باغیوں کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اپنی اس بے دردی سے موت کے وقت معمر قذافی ان باغیوں سے کہتے رہے کہ میرے بچوں، تمہیں نہیں پتا تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں سچ نہیں پتا، کسی کے پروپیگنڈا میں آ کر اپنے ملک کو تباہ مت کرو، مگر کسی نے بھی ان کی بات نہیں سنی۔ قذافی نے اپنی ایک تاریخی تقریر کے اندر دنیا کو آگاہ کیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مسلمان حکمران اکٹھے ہو جائیں، ورنہ عراق، شام، فلسطین، افغانستان کے بعد ایک ایک کر کے ہماری باری آنے والی ہے، اور دشمن ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اتحاد کو توڑ کر ایک ایک کو تباہ کرے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا، میں لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور آج ان کی موت کے 11 سال کے بعد ان کا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا کہ ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو تباہ کیا گیا، ان کے وسائل پر قبضے ہوئے، اور آج لیبیا کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر بے تحاشا باغی جماعتیں موجود ہیں، دنیا کے تمام مافیا دہشت گرد یہاں پر موجود ہیں، اکانومی بالکل تباہ ہو چکی ہے، بالکل قیامت کا سماں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قذافی کے دور کے اندر اس ملک کا لائف سٹائل اور اس کے لوگوں کی آمدنی یورپ کے اندر بھی موجود سب سے ترقی یافتہ ملکوں سے سب سے زیادہ تھی۔ لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر بغاوت کیوں ہوئی؟ معمر قذافی کو آخر کیوں قتل کیا گیا؟ اس کی موت کے پیچھے اصل حقائق دراصل کیا تھے؟ آج لیبیا کس حال میں ہے؟ قذافی کی موت کے بعد ہیلری کلنٹن اور ہالی ووڈ فلم انڈسٹری کے اندر کیسے ان کا مذاق بنایا گیا؟ ان سب حقائق سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تاریخ کے ایسے حقائق جو کہ آج تک آپ سے چھپائے گئے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ 2011 میں CBS چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے US سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن کا معمر قذافی کی موت پر کہنا تھا کہ ہم آئے، ہم نے اسے دیکھا اور وہ مر گیا، اور اس کے بعد ایک کہکا لگا کر اس کی موت کا مذاق بنایا۔ ہیلری کلنٹن کے یہ الفاظ قذافی کو نیٹو اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے اپنے ہی برین واش باغی لوگوں کے ہاتھوں ایک سازش کے ذریعے بے دردی اور شرمناک طریقے سے 20 اکتوبر 2011 کو ذلیل و رسوا کر کے قتل کرنے کے بعد کے تھے۔ ذلیل و رسوا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ پہلے ان لوگوں نے معمر قذافی کو 5 گولیاں ان کی پیشاب والی جگہ پر ماری۔ جب ان کے اندر سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو ان کے کپڑے پھاڑ کر لاتوں اور مکوں سے انہیں مارا گیا، جس کے بعد ان کے سر اور پیٹ کے اندر گولیاں مار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس دوران اپنے چہرے سے خون صاف کرتے ہوئے وہ بس یہی کہہ رہے تھے کہ خدا اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے بچوں، آپ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی موت کے بعد لیبیا آج ایک جہنم سے بھی بدترین جگہ بن چکی ہے، لیکن معمر قذافی کے 42 سالہ دور کے اندر یہ دنیا کی کسی جنت سے کم نہیں تھی، اور اس کی وجہ کہ اس ٹائم میں لیبیا کے اندر تعلیم، صحت، بجلی، گیس اور پانی بالکل مفت تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، کسی کے گھر میں کبھی اس کا کوئی بل نہیں آیا۔ آج بھی آپ کسی ایک ترقی یافتہ ملک کی بھی مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں پر یہ تمام بنیادی ضروریات مفت ہوں اور لوگوں کا لائف سٹائل اتنا ہائی ہو۔ اس کے علاوہ لیبیا میں سیلری اور بزنس ٹیکس فری تھے۔ لیبیا کا سٹینڈرڈ آف لیونگ پورے افریقہ میں سب سے ہائیسٹ تھا، اور یہ ملک تیزی سے ترقی کر کے دنیا کی سب سے مضبوط معیشت بننے جا رہا تھا۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص ایگریکلچر یا فارمنگ کو پیشہ بنانا چاہتا تو اسے زمین، گھر، اکوپمنٹ، لائف سٹاک، کھاد، سب کچھ حکومت مفت میں دیتی۔ یہاں کوئی بھی شخص بے گھر نہیں تھا، کیونکہ لیبیا میں ہر شخص کے پاس اپنا ذاتی گھر ہونا ایک بنیادی ضرورت مانا جاتا، جس کے اندر حکومت ان کی مدد کرتی۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جاب نہ ملنے تک حکومت اسے سیلری دینے کی پابند تھی۔ قذافی کے دور میں لیبیا کا لٹریسی ریٹ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10% سے بڑھ کر 88% تک جا پہنچی تھی۔ شادی کے وقت ہر کپل کو $50,000 اور ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے کو $5,000 حکومت ادا کرنے کی پابند تھی۔ نئی گاڑی خریدنی ہے تو اس کی آدھی پیمنٹ حکومت کرتی۔ قذافی نے بینکس اور آئل کو نیشنلائز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بینک لون انٹرسٹ 0% تھا، اور پیٹرول تو پانی سے بھی سستا تھا۔ کین یو امیجن کہ لیبیا کے آئل کی فروخت کا کچھ حصہ ہر شہری کے اکاؤنٹ کے اندر ڈائریکٹ حکومت بھیجا کرتی۔ میگا نیشنل الیکٹرک گریڈ حکومت نے بنایا جو کہ پورے لیبیا کو مفت میں بجلی فراہم کرتا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ UK، برطانیہ اور فرانس کے گرڈ اسٹیشن بھی مل کر اس کے سائز اور پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس ملک پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس اپنے $150 بلین کے ریزرو تھے، اور دنیا کا سب سے بڑا انسانی اریگیشن پروجیکٹ لیبیا کے اندر موجود تھا، جو کہ ایک عجوبے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ 2820 کلومیٹر لمبا انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ تھا، جسے بنانے کے اندر $25 بلین خرچ ہوئے۔ نوبین سینڈ سٹارم ایکو فائر سسٹم یعنی زمین کے نیچے موجود دنیا کا سب سے بڑا فریش پانی کا ذخیرہ، جس کا کچھ حصہ مصر،
कुछ सूडान, कुछ लीबिया और कुछ चाड के अंदर मौजूद है। ये आइस एज के ज़माने का मौजूद ज़ेरे ज़मीन सबसे फ्रेश पानी है जो कि कई हज़ार सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसका जितना हिस्सा सिर्फ मिस्र के अंदर ज़मीन के नीचे मौजूद है वो इतना ज़्यादा है जितना दरियाए नील ने 500 सालों के अंदर इतना पानी नहीं बहाया। जबकि लीबिया के लोग इसी इको फायर से ताज़ा पानी पी रहे हैं जिसे गद्दाफी ने अपने लोगों के लिए बनाया था, जो कि अगले 1000 साल तक इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, चाहे इससे जितना मर्जी पानी पी लें। जिसका सिला लीबिया ने नेटो के साथ मिलकर गद्दाफी को जलील और रुस्वा करके कत्ल करके दिया। मगर सवाल यह है कि ऐसे हालात आखिर पैदा कैसे हुए? नेटो ने ऐसी क्या चाल चली कि गद्दाफी के अपने ही लोग इसे कत्ल करने निकल पड़े? पहली वजह थी मुअम्मर गद्दाफी के आइडियाज़, जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में अमेरिकन इकॉनमी को टक्कर देकर इसे पीछे छोड़ने वाले थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी मुल्क अपनी इकॉनमी की वजह से ही सुपर पावर कहलाता है। किसी मुल्क के पास चाहे जितनी बड़ी मर्जी आर्मी क्यों ना मौजूद हो, अगर इसे चलाने के लिए इस मुल्क के पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं तो ये आर्मी किसी काम की नहीं। दूसरी वजह थी गद्दाफी का मुसलमान लीडर्स को इकट्ठा करके नेटो के खिलाफ एक ब्लॉक मुस्तकबिल के अंदर बनाने का खदशा। और तीसरी सबसे अहम वजह थी ऑयल, जिसकी वजह से अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान, इराक और सीरिया वगैरह को इस मकसद के लिए पहले ही तबाह कर रखा था। आप सोच सकते हैं कि इस बात का सबूत क्या है। इसका सबसे बड़ा सबूत है हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स लीक, जिनमें साफ जाहिर था कि फ्रांस और अमेरिका ने साजिश के जरिए लीबिया को तबाह करने के लिए जानबूझकर साजिश के जरिए गद्दाफी पर हमला करवाया, और इसमें यूएई और कतर भी शामिल थे। इसके अलावा एक और सबसे अहम तरीन वजह जो कि लीबिया पर अटैक की वजह बनी वो ये थी कि लीबिया क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है और लीबिया के पास 143 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद थे, तो इसका मुस्तकबिल में इरादा था कि वो पूरे अफ्रीका के अंदर अपनी एक गोल्ड दिनार की करेंसी को लॉन्च करे, जिसके बाद ये पूरे अफ्रीका के अंदर अपनी खुद की गोल्ड करेंसी यानी गोल्ड दिनार के अंदर ऑयल की ट्रेड करता। और यूं अफ्रीका में मौजूद 17 फ्रेंच कॉलोनीज रह चुके मुल्कों के अंदर भी फ्रांस की करेंसी की बजाय अब इस गोल्ड दिनार के अंदर ट्रेड होती, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस का कंट्रोल इन फ्रेंच कॉलोनीज पर खत्म हो जाता, ये उनके असर से आज़ाद हो जाते। इसके साथ साथ गद्दाफी ने यह बहुत बड़ा फैसला भी कर लिया था कि पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल जो कि यूएस डॉलर के अंदर बेचा जा रहा है, अब हम इसे यूरो, रशियन करेंसी रूबल और रुपए में भी बेचेंगे। और आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने की सबसे अहम वजह यह भी है कि ऑयल ट्रेड या बाकी इंटरनेशनल ट्रेड जो कि अमेरिकन डॉलर्स के अंदर होती है, इसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिसके बाद इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन गद्दाफी का यह फैसला सीधा सीधा अमेरिकन करेंसी की मौत था। इसके अलावा लीबिया ने अमेरिका के राइवल मुल्क मसलन चाइना, रशिया और इंडिया से इनकी अपनी करेंसी के अंदर अरबों डॉलर की ऑयल की डील की थी। इस फैसले से अमेरिकन डॉलर की डिमांड कम होकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल भी इन मुल्कों पर खत्म हो जाता, जिन दो बड़े इदारों से अमेरिका पूरी दुनिया के मुल्कों की इकोनॉमी पर डायरेक्टली ना सिर्फ असर अंदाज होता है बल्कि इनको अपनी शराइत के नीचे बांध कर रखता है। यानी अफ्रीकन मुल्कों को वर्ल्ड बैंक के कर्जों से या ट्रैप से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाता, जिसका मतलब कि अमेरिका का सिर्फ लीबिया पर नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका पर कंट्रोल मुस्तकबिल के अंदर ख़त्म होने वाला था। लिहाजा ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर अमेरिका इस वक्त कोई एक्शन ना लेता तो ये बाकी मुल्कों के लिए एक ट्रेंड सेट होता, और वो भी एक के बाद एक बिल्कुल ऐसा ही करते जो कि इनका हक भी है। मगर ये अमेरिका के मफाद में नहीं था कि इसका कंट्रोल बाकी दुनिया के ममालिक पर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसी एक वजह से तो वो बाकी दुनिया के ममालिक पर जब चाहे सैंक्शंस या पाबंदियां लगा देता है। और ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ मुअम्मर गद्दाफी की मौत की असल वजह बने, जो कि इसके अपने लोगों के मफाद में थे। इसके अलावा एक अहम तरीन वजह यह भी थी कि नेटो ममालिक को अपने मुल्क के अंदर कॉलोनीज ना बनाने देना, क्योंकि गद्दाफी को अमेरिकन और इसके इत्तेहादियों की मदाखलत अपने मुल्क के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। इनसे पहले इदरीस अल-सनसुई लीबिया का हुक्मरान था, जो कि एक मुकम्मल वेस्टर्न पपेट था। इसने नेटो के कई बेस लीबिया के अंदर बनाए थे, जिनके अंदर 5 इटालियन बेस सबसे अहम थे, और गद्दाफी ने आते ही इन सब अहम तरीन बेसिस को ख़त्म कर दिया। इसके अलावा आप जानते हैं कि लीबिया के अंदर क्योंकि ऑयल के बहुत ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, और जब गद्दाफी ने इसे नेशनलाइज कर दिया तो इसका मतलब ये था कि कोई भी बाहर की कंपनी लीबिया में आकर ऑयल नहीं निकाल सकती और ना इसे कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और कतर को अपनी ज़रूरियात के लिए यह ऑयल हर सूरत में चाहिए था। अगली वजह यह थी कि गद्दाफी वेस्ट को ललकारा करते थे कि इनके किसी कानून को ना मानते, और कई बार इंटरनेशनल मौकों पर इनकी पॉलिसीज़ पर क्रिटिसिज्म भी किया, क्योंकि इनका मानना था कि लीबिया का अपने रिसोर्सेज पर मुकम्मल इख्तियार है कि इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, कोई इसे डिक्टेशन या हिदायत बिल्कुल ना दे। गद्दाफी को अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर भी किसी तरह की बैरूनी मदाखलत बर्दाश्त नहीं थी, और इन पॉलिसीज की वजह से वेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लिहाजा ये इसे कितनी देर बर्दाश्त करते, इनकी आंखों में ये शख्स कांटे की तरह चुभने लगा था। लिहाजा गद्दाफी का जाना तय हो गया, मगर जंग से नहीं बल्कि साजिश से।
दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2010 के आगाज के अंदर इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी के चलते अफ्रीका के मुल्क तुनिसिया के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ पीसफुल मुजाहरे शुरू हुए, जो कि बढ़ते बढ़ते इजिप्ट, सीरिया, बहरीन और यमन तक जा पहुंचे और वेस्टर्न मीडिया ने इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और इन मुजाहरों को अरब अपराइजिंग का नाम दिया। 15 फरवरी 2011 के अंदर ये मुजाहरे लीबिया के शहर बंगाजी में शुरू हुए फतेह तारोल नाम के ह्यूमन एक्टिविस्ट के अरेस्ट के खिलाफ, और देखते ही देखते कई बागी इकट्ठे होकर गद्दाफी की हुकूमत के खिलाफ एक नई गवर्नमेंट बना लेते हैं। कतर और वेस्टर्न मीडिया इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाता है और ये भी कि गद्दाफी इसे रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करके अपने ही लोगों को मार रहा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। पर वेस्ट को इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला था और इसी बहाने को सामने रखकर यूनाइटेड नेशन ने 17 मार्च 2011 को 1973 की रेजोल्यूशन के तहत नेटो और इसके तादियों को लीबिया में हमला करने की इजाजत दे दी कि लीबिया के लोगों को गद्दाफी से बचाएं। हालांकि इस रेजोल्यूशन की वोटिंग के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील और जर्मनी ने वोट डालने से मना कर दिया था कि हमें इसके सबूत नहीं मिले। मार्च 2011 के अंदर लीबिया पर यूरोप और मिडल ईस्ट के 10 मुल्कों ने हमला शुरू किया, जिसके बाद 7 और ममालिक भी इसके अंदर शामिल हो गए, यानी 17 मुल्क और लीबिया अकेला, कोई दोस्त साथ नहीं। और इससे भी बड़ी मुश्किल यह थी कि गद्दाफी को क्योंकि अपनी मिलिट्री की कू का डर हर वक्त लगा रहता था, लिहाजा जानबूझकर इसने अपनी आर्मी को जगह जगह पर फैलाकर कमजोर कर रखा था, जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान इस हमले के नतीजे में इन्हें आखिरकार उठाना पड़ा। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी 80 गाड़ियों के काफिले के अंदर बेंगाजी शहर जा रहे थे कि नेटो फोर्सेस ने इनके फोन से इनकी लोकेशन ट्रेस करके ड्रोन के जरिए इनकी गाड़ियों पर हमला करके इन्हें ज्यादातर को तबाह कर दिया और गद्दाफी अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रेनिंग पाइप के अंदर घुस गए, लेकिन बागियों ने इन्हें देखकर इस पाइप से बाहर निकाला और इंतहाई बेदर्दी और सफाकी से कत्ल कर दिया। 2 दिन तक इसकी लाश को फ्रीजर में रखा गया, लोग आकर इसकी लाश का दीदार करते रहे और आखिरकार रेगिस्तान के किसी खुफिया कमरों में इसे दफना दिया गया। जिसके बाद गद्दाफी के ये अल्फाज लोगों की समझ में आए कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और शौकत भी अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि आज लीबिया 3 टुकड़ों के अंदर तकसीम हो चुका है। एक है दरमियाना हिस्सा जिसमें तमाम ऑयल के ज़खायर मौजूद हैं और इस पर लीबियन नेशनल आर्मी का कब्जा है। इसका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड के पास, जो कि अमेरिकन सपोर्टेड है, और तीसरा हिस्सा बागियों के पास है। इन 3 मेजर हिस्सों के अलावा तमाम तरह की राइवल पार्टीज, मिलिटेंट्स, दहशतगर्द, माफियाज, गैंग्स, एजेंसीज और दुनिया भर के तमाम गैर कानूनी गैंग्स और दहशतगर्द तंजीमों में से कोई एक भी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पर मौजूद ना हो, जो कि गद्दाफी के दौर के अंदर इम्पॉसिबल था। यहाँ पर हर कोई किसी न किसी से लड़ रहा है, सब आपस में लड़ रहे हैं लीबिया के ऑयल के लिए। लीबिया पर नेटो ने जंग मुसल्लत की थी लीबिया के लोगों को गद्दाफी से बचाने के लिए, लेकिन इस वक्त जब इस मुल्क के लोग एक दूसरे से ऑयल पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे हैं, इस बात से यूनाइटेड नेशन को कोई मसला नहीं, ना ही नेटो फोर्सेस को, क्योंकि उनका मकसद तो पूरा हो गया। इस वक्त लीबिया के अंदर करप्शन, तबाही, बेरोजगारी, क्राइम, कत्ल हर जगह पर बस यही नजर आता है। इनका हाल पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं। लीबिया के लोग आज भी इन लोगों के मुंतजिर हैं जो कि इन्हें गद्दाफी से बचाने के लिए और एक अच्छा मुस्तकबिल देने आए थे। यहाँ के 50,000 लोग अपनी जानें देकर आखिरकार समझ गए हैं कि जब मैं जाऊंगा तो लीबिया की शान और शौकत को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इन अल्फाज का मतलब क्या था? और इन तमाम हकायक से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुश्मन कैसे आपको बिना हथियारों के साजिशों के जरिए ही तोड़ सकता है। अगर कोई मुखलिस लीडर आपके मुल्क की तकदीर को बदलना चाहता है तो अवाम की सपोर्ट के बगैर वो कुछ भी नहीं है। अवाम को अपने हकूक़ व फ़राइज़ को समझना पड़ेगा और इस इंटरनेशनल लेवल के प्रोपेगेंडा को भी, क्योंकि गद्दाफी की मौत के कई साल बाद भी हॉलीवुड इनकी तब्दील करवाने के लिए कई तरह की मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज इन पर बना चुका है ताकि सच दुनिया के सामने कभी ना आ सके। पर हक और सच की खासियत यही है कि आज नहीं तो कल वो सामने आकर ही रहता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।